Hello students. Now here we start explanation of part 2 of food and health. Our next topic is disease. A disease is an abnormal condition in which our body does not function properly. Now, what is disease? A disease is a condition. It is that type of condition in which our body does not function properly. Our body is unable to do the work. Disease can occur due to lack of any nutrient in our body. In the previous class I taught you about the nutrients. Now if our body lacks the nutrient, अगर हमारी body में किसी nutrient की कमी हो जाएगी तो what will happen? Our body will suffer from any of the disease. They may also occur due to germs. Now see, disease they spread either due to lack of any nutrient or due to germs. हमारे जर्म से भी डिजीज स्प्रेड होती हैं. देर आर टू टाइप ऑफ डिजीज. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज आर देर? नॉन कम्युनिकेबल एंड communicable disease. Now see, you have to remember that there are two type of disease, non communicable and second is communicable. So first we will start with non communicable disease. The disease that do not pass from one person to another are called नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती, नहीं पास कर सकते. एक पर्सन को अगर वो डिज़ीज़ है दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होती, ऐसी डिज़ीज़ को क्या बोलेंगे? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू लैक of particular vitamins or minerals in the body. Now see, these diseases, non-communicable disease, the main cause of these diseases lack of particular vitamins or minerals. अगर हमने कोई particular vitamin और mineral नहीं लिया तभी हमें ये disease लगती है. Such disease are called deficiency disease. इसलिए इन disease को हम क्या बोलते हैं? Deficiency. Deficiency means कमी. किसी चीज़ की कमी के वजह से ये डिज़ीज़ हमको होती हैं. आइदर ड्यू टू लैक ऑफ vitamins or due to lack of minerals. Some deficiency disease are shown in the figures below. See, first one is scurvy, rickets and goiter. These are the examples of these non-communicable diseases. First example is scurvy. In this gums दे स्टार्ट ब्लीडिंग. हमारे गम्स जो मसूड़े होते हैं इनमें प्रॉब्लम आ जाती है. रिकेट्स में क्या होगा? हमारे पैरों में चलने में प्रॉब्लम आ जाएगी ड्यू टू वीक बोन्स. एंड गोइटो ड्यू टू द इट इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन द फूड. सो लेट अस रीड नेक्स्ट मोर अबाउट इट. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर रिलेटेड टू इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स. अगर हमारी इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स हैं, हम सही तरह से खाना नहीं खाते, हमारी डाइट में हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, डाइट में किसी चीज़ की कमी है, तो हमारे ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन हुज डाइट इज़ डिफिशेंट इन विटामिन डी में सफ़र फ्रॉम रिकेट्स. आपको पता है ये रिकेट्स जो बीमारी है, अगर हमारे विटामिन डी की कमी होगी हमारी बॉडी में, सो वी विल सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़ एंड द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ rickets. In this disease, a person it has weak bones and the person has a problem in walking. Cigarette smoking and chewing of tobacco can also lead to harmful non-communicable disease like cancer. Now you must have seen smoking, chewing of tobacco, तंबाकू खाना. ये पर्सन अलग अलग खाते हैं, कहीं खाते हैं, जो लोग खाते हैं उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है. एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिजीज़? द नेम ऑफ द डिजीज़ इज़ कैंसर. सो you might have followed now. Non-communicable disease, they do not spread from person to person and they are caused due to lack of vitamins or minerals in our food. Now see students, some of the deficiency disease and these symptoms are given in the table below. We will discuss them, some of them. First is deficiency disease, night blindness. If we do not take proper vitamin A, this disease will be caused. And the symptom means क्या लक्षण है इसके? पर्सन नॉट एबल टू सी इन द डिम लाइट. हम कम लाइट में, जिसको भी ये डिजीज़ होगी वह पर्सन कम लाइट में नहीं देख पाएगा. एंड फूड रिच
in the vitamin and minerals, green leafy vegetables, carrot, papaya, mango, milk, and eggs yolk. Now this food item we should eat. green leafy vegetables खाने चाहिए, carrot, गाजर, papaya, mango, ये सब खाने चाहिए in order to remove the disease called night blindness. Now second deficiency disease is beriberi. It is caused by vitamin B1. A person has weak muscles and nerves and get क्रैम्स. इसमें इस डिज़ीज़ में इस पर्सन को क्या होता है, जिस पर्सन में बेरी बेरी डिजीज़ होती है, इसके वीक मसल्स हो जाते हैं, इस पर्सन के मसल्स वीक होते हैं, और ये सब हमको अनपॉलिश्ड राइस, पीस, मिल्क एंड मीट, इनके द्वारा ये डिज़ीज़ हटाई जा सकती है. फूड रिच इन दिस vitamin is unpolished rice, eggs, milk, peas and meat. Third is scurvy. This is caused due to deficiency of vitamin C. Bleeding of gums, हमारे जो मसूड़ हैं इसमें से खून आने लग जाता है. And swelling of joints, हमारे joints में भी swelling होने लग जाती है. If a person suffers from scurvy, such symptoms are found. Apple and these fruits, potato, lemon, citrus fruits, especially the citrus fruits we should eat in order to remove the deficiency disease called scurvy. Next is rickets. It is caused by vitamin D, soft bones and bow legs. हमारी टांगें जकड़ जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, बोन्स भी सॉफ्ट हो जाती हैं इसमें. मिल्क एंड फिश, these are the examples of this we should take in order to remove the disease called rickets. Goitre, it is caused due to the deficiency of iodine. नमक में आयोडीन नमक खाना चाहिए, अदरवाइज वी विल सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़. स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स इन द नेक रीजन, हमारे नेक रीजन के हमारे ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं. आयोडाइज सॉल्ट, इसलिए हमें नमक कौन सा खाना चाहिए, जिसमें आयोडीन ज़्यादा हो. नेक्स्ट इज़ एनीमिया. एनीमिया डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू लैक ऑफ आयरन. अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया होगी. पर्सन गेट टायर्ड ईजली एंड लुक्स पेल. ऐसा पर्सन क्या हो जाता है, जल्दी थक जाता है और पीला पीला दिखने लगता है, कोई बीमारी लगती है उसमें. स्पेनिच, ब्रिंजल, जैगरी, एप्पल, गुआवा एंड मीट, दीज आर सोर्सेज ऑफ दिस आयरन. हमें स्पेनिच, पालक खानी चाहिए, बैंगन, गुड़, एप्पल, ये सब खाएंगे तो हमको दिस एनीमिया डिजीज़ विल नॉट बी caused. So students, in the last class also I taught you that we should have, in order to remain disease free, हमें कोई बीमारी नहीं हो, इसलिए we should have a balanced diet. Next is communicable disease. The disease that are spread from one person to another are called communicable disease. Yes, nowadays, these days very common, due to which you are having the online classes. Communicable disease, the whole world is under this communicable disease. And what is the name of the disease? The name of the disease is corona. This disease spread from person to person. एक आदमी से दूसरे आदमी में ये disease पहुंच जाती है. The best example nowadays is in these days is corona. Now see, communicable disease are caused by germs. जर्म्स से फैलती है, ये वायरस से फैल रही है. आपको पता है ना, आप सुन रहे हैं टीवी में, देख रहे हैं न्यूज़, तो ये वायरस से फैलती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है. सो कोरोना इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़. सम ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज बाय बैक्टीरिया से कॉज होती है, वायरस से, प्रोटोजोआ से एंड फंजाई. So students, remember there are two types of disease. One is non-communicable, which do not spread from person to person, and next is communicable, which spread from person to person. And the best example is the disease which we are facing these days. Students, please see, these are some of the communicable disease and the germs are written over here. First is this bacteria. The disease caused by it is plague, tuberculosis and typhoid. Second is virus. It is caused by virus and the disease is common cold, polio, measles, chicken pox, flu, etc. Third disease is caused by protozoa and the disease is malaria, kala azar and amoebic dysentery. And the fourth
this virus is fungi, and the disease are infections of skin and athletes food. And nowadays we can say the virus is this corona, and sorry, disease is corona, and it is caused by one of the virus. Now see students, these communicable disease spread through air, water, food, insects, and through direct contact. I told you in the previously also that these communicable disease, they are caused by the agents. Causing agents are air, through air also, through direct contact when we come in contact with the person, or through infected food and water, through insect. These are the carriers of the communicable disease. Now see, first is through air. When a sick person cough, sneezes और स्पेट्स, जर्म्स आर रिलीज इनटू द एयर. जब भी सिक पर्सन, कोई भी सिक पर्सन जिसको वो बुखार है या कोई दूसरी बीमारी है, अगर वो सिक पर्सन कफ करता है, खांसी होती है, उसको छींक आती है, तो और वो जब थूकता है तो जर्म्स आर रिलीज इनटू द एयर. जर्म्स एयर में आ जाते हैं. यही जैसे कोरोना अभी बीमारी चल रही है, उसमें भी यही सब हो रहा है. जर्म्स एंटर एंड रिलीज इनटू द एयर. व्हेन अ हेल्दी पर्सन breathes the air, germs enter into the body. अब हेल्दी पर्सन जब एयर ब्रीथ करते हैं, हम जब स्वस्थ आदमी उस एयर को ब्रीथ करते हैं, तो जर्म्स कहाँ चले जाते हैं? हमारी बॉडी में चले जाते हैं, एंड मेक अस सिक, और हमको बीमार कर देते हैं. देयरफॉर वी शुड ऑलवेज कवर आवर नोज एंड माउथ विद हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग. आपने देखा होगा, टीवी में भी बता रहे हैं अभी, जब भी हमको खांसी आए, छींक आए, तो हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए, नोज़ को कवर करना चाहिए. डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड ट्यूबरक्लोसिस आर कॉज थ्रू एयर. और ये बीमारियां हमारी, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, दे आर कॉज थ्रू एयर. नाउ नेक्स्ट इज the next carrier, next agent is through direct contact. अगर हम पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तब भी हमको ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है. व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन और हिज हैंडकरचीफ, टॉवल, क्लोथ्स एक्सेट्रा, ही कैन गेट इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स. अगर हेल्दी पर्सन, जिस आदमी के कोई भी डिजीज़ नहीं है, अगर बीमार आदमी के हैंडकरचीफ को, टॉवल को, क्लोथ्स को हाथ लगाएगा तो दूसरे आदमी को भी ये बीमारी हो जाएगी. गेट इन्फेक्टेड बाय द जर्म्स, जर्म्स से उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. डिजीज़, देखिए कोरोना तो अभी चल ही रहा है, लेकिन इससे पहले जो डिजीज़ चल रही हैं, डिजीज़ लाइक मीज़ल्स, चिकन पॉक्स एंड रिंग वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ये डिजीज़ भी इनके अनहेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से हेल्दी पर्सन को भी हो जाती है. दिस इज़ द सेकेंड एजेंट, सेकेंड कैरियर of this communicable disease. Third is through infected food and water. कभी कभी हम गंदा खाना खा लेते हैं, साफ़ पानी नहीं पीते, उससे भी हमको ये बीमारियाँ फैल जाती हैं. Sometimes food and water may get infected with germs and they are not stored or handled properly. कई बार हमारे जो खाने हैं और फूड हैं, ये भी, इनमें भी इन्फेक्शन आती है. पानी गंदा आता है, हम गंदा पानी पी लेते हैं, या हमारे फूड में कहीं पुराना फूड हम खा लेते हैं, होटल में जाते हैं तो कहीं पुराना खाना वो लोग हमको खिला देते हैं, या घर में ही अगर हम सही खाना नहीं खाते तो उससे भी हमको ये बीमारियाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल जाती है. फ्लाइज एंड कॉकरोचेज आर कैन कंटेमिनेट आवर फूड विद जर्म्स. देखिए खाना तो हमने अच्छा बनाया, लेकिन अगर उस पर फ्लाइज, मक्खी आके बैठ गई तो वो भी उसको गंदा कर देती है, कंटेमिनेट कर देती है, उसमें जर्म्स फैला देती है, हमारे खाने में भी जर्म्स फैला देती है. डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड पोलियो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. ये डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़? कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, पीलिया, ये एंड पोलियो, ये सब बीमारियां हमारी गंदे पानी से और गंदे खाने से ही फैलती हैं. सो वी शुड हैव हेल्दी फूड इन ऑर्डर टू रिमेन healthy. Yes, next students see the communicable disease are also carried through insects.
Disease like malaria, dengue, plague, and chikungunya spread through blood of insects like mosquitoes, bugs and flies. Now see these disease, डेंगू है हमारा, मलेरिया, डेंगू, प्लेग, चिकनगुनिया, ये कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के थ्रू फैलता है. मॉस्किटो, बग्स एंड फ्लाइज, ये मॉस्किटोज़ के नाम, ये इंसेक्ट्स के नाम है. इन इंसेक्ट्स से हमारी कौन कौन सी बीमारी लगती है? मलेरिया, डेंगू, आपने सुना होगा पहले बरसातों में ये बीमारी चली थी बहुत, डेंगू. दीज आर कॉज ड्यू टू द these insects. Malaria is caused by a protozoa that is carried uh, by the female Anopheles mosquito. Now see, malaria very common disease. It is caused by protozoan that is carried by female Anopheles mosquito. This is the name of the insect, Anopheles mosquito. So malaria, this is caused by this insect. You have to remember the name, and the name of the insect is Anopheles mosquito. When mosquito bites someone with malaria, अब देखिए ये मलेरिया कैसे फैलता है? जब ये मॉस्किटो जिस आदमी के मलेरिया उसको काटता है, द जर्म्स आर सक्ड अप बाय द ब्लड, जर्म्स वो सक कर लेता है. जब ये इंसेक्ट किसी मलेरिया वाले पर्सन को काटता है तो उसका खून को चूस लेता है. व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और यही मॉस्किटो जब स्वस्थ आदमी को वापस काटता है, द जर्म्स आर इंजेक्टेड इनटू द हेल्दी पर्सनस ब्लड कॉजिंग मलेरिया. ऐसे जो हेल्दी पर्सन को जब ये काटता है, यही मॉस्किटो जब हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो जर्म्स उसके ब्लड से लेकर अनहेल्दी पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन में डाल देता है, और इस तरह से हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो जाता है. तो फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन हु इज़ कैरिंग द डिजीज़ कॉजिंग, who is bringing the disease, the Anopheles mosquito, the malarial causing parasites, they are bringing the disease from unhealthy person to a healthy person. They suck the blood of unhealthy person, and when they bite the healthy person, the disease is spread from unhealthy to healthy person. Dengue is spread by bite of Aedes mosquito. You have to remember the name of the mosquito. डेंगू किसकी बाइट से होता है, किसके काटने से होता है? एडीज मॉस्किटो. प्लेग इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ फ्लीज कैरिड बाय रैट्स. अब रैट्स के काटने से भी, देखिए रैट्स के काटने से भी बीमारी फैल जाती है, दैट इज़ प्लेग. प्लेग इज स्प्रेड बाय बाइट ऑफ फ्लीज कैरिड बाय रैट्स. और इसको कौन लेके घूमता है? इस प्लेग के जो इंसेक्ट्स हैं, इसको कौन लेके घूमता है? रैट. सो इट इज़ कॉज बाय द बाइट ऑफ द रैट्स. Yes students, now we have come to know how the communicable disease are spread. They are spread by the bite of the insects, by air, by not proper healthy habits. Now see how we can prevent the कम्युनिकेबल डिज़ीज़. हम कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को कैसे रोक सकते हैं? अभी आपका कोरोना चल रहा है, आपने देखा होगा कैसे उसके लिए सरकार बता रहे हैं हमको, गवर्नमेंट हमारी बता रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टेलिंग दैट वी हैव टू वेयर द मास्क. दिस इज़ फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज़, बट देर आर सो मैनी डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़. how we have to overcome the communicable disease, what are the preventive measures that we have to take in order to stop the communicable disease. So prevention of, our next topic is prevention of communicable disease. Communicable disease can be prevented by good hygiene and वैक्सीन. हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अगर हम साफ़ सुथरा हेल्दी हैबिट्स रहेंगी हमारी, हम स्वच्छता से रहेंगे और दवाई प्रॉपर लेंगे, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन बी स्टॉप. हाइजीन में बी डिफाइंड एज प्रैक्टिस दैट एंश्योर क्लेanliness and good health. Hygiene, what is hygiene? Hygiene can be defined as a practices, ऐसी practices जिसमें हम अपने आप को साफ रखें, that ensure cleanliness, हम खुद साफ रहें, हमारे आसपास का वातावरण साफ रहे, हम साफ़ सुथरा खाना खाएं, and good health, और जिससे हमारी हेल्थ प्रॉपर रहे. दिस इज़ डिफाइंड एज hygiene.
फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन गुड हाइजीन। अब हम अपना हाइजीन कैसे सही रख सकते हैं। दीज स्टेप्स वी विल रीड वन बाय वन। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड and after going to toilet with soap and water. This you might be hearing daily whenever you ring someone, आप फ़ोन करते हैं या आप टीवी में भी देख रहे होंगे। वो जो बीमारी अभी इन दिनों चल रही है कोरोना, उसमें आपको बार बार कहते हैं 2 मिनट तक आप हाथ धोइए, अच्छी तरह से हाथ धोइए, किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाएं, हाथ धोइए। इन द सेम वे अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑल्सो इट इज़ सेड दैट यू हैव टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। पहले भी, खाना खाने से पहले भी और बाद में भी धोने चाहिए। आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट विथ सोप एंड वाटर, दोनों से, साबुन और पानी दोनों से हमको बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड इन डिचेस, वेसल्स, कूलर, पॉट्स एक्सेट्रा। कभी भी कहीं पे भी पानी को पानी को रुकने ना दें। जैसे कहीं पे खड्डे होते हैं वो भर जाते हैं, कूलर से पानी कूलर में बार बार चेंज करते रहे। अगर सेम पानी रहेगा थोड़े दिन के लिए, उसमें बदबू आने लगेगी, उसमें मक्खी मच्छर बैठने लग जाएंगे, उससे हमें बीमारी लग जाएगी। इन और अराउंड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर भी और घर के अंदर भी। स्टेगनेंट वाटर अलाउज ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। स्टेगनेंट वाटर मीन्स अगर खड़ा हुआ पानी होगा तो उसके अंदर हमारे ये जो मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनके बढ़ने की संभावना रहती है। वो इंसेक्ट्स बहुत पलते हैं उसमें। यूज़ मॉस्किटो नेट्स और मॉस्किटो रिपेलेंट एट नाइट। रात को हमें मॉस्किटो नेट यूज़ करनी चाहिए या मॉस्किटो रिपेलेंट गुड नाइट वगैरह हमको रात में यूज़ करनी चाहिए इन ऑर्डर टू थ्रो दीज मॉस्किटोज आउट। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल बिफोर कुकिंग और ईटिंग दैम। हमें वेजिटेबल्स हों चाहे फ्रूट्स हों, सबको अच्छी तरह से खाने से पहले धोना चाहिए। सब्जियों को बनाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। फूड में मस्ट बी केप्ट कवर्ड बाय टू प्रिवेंट फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। हमें फूड को हमेशा ढक कर रखना चाहिए सो दैट नो फ्लाइज, मधुमक्खी उस पर आकर नहीं बैठ जाए। डू नॉट अलाउ हीप्स ऑफ गार्बेज टू कलेक्ट नियर योर होम। घर के आसपास कचरा को इकट्ठा होने ना दें। कचरे का ढेर लग जाता है, हीप्स लग जाते हैं, ढेर लग जाता है, उसको खड़ा होना, उसको एक जगह पे इकट्ठा होने ना दें। आजकल आपने देखा होगा कचरा गाड़ी आती है, उस कचरा गाड़ी में हमें अपने कचरे को डालना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर। डस्टबिन को भी हमें कवर रखना चाहिए। ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें वाटर हमेशा क्लीन पीना चाहिए। वाटर कैन बी मेड क्लीन एंड जर्म फ्री बाय बॉइलिंग। अब देखिए, अभी लोगों के घरों में फ़िल्टर्स लगे होते हैं, वाटर फ़िल्टर्स। इफ़ सम पीपल दे डू नॉट हैव फ़िल्टर्स, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेक द वाटर जर्म फ्री? इट इज़ बॉइलिंग। You can boil the water, then you can make it cool down and then you can put in your pots। फिर आप अपने मटके में डाल दें ठंडा करके। सो बॉइलिंग इज़ द बेस्ट टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। फिल्टर लगे होते हैं। एंड क्लोरीनेशन, क्लोरीन जो होती है वो भी आप पानी में डाल देंगे तो आपका पानी साफ हो जाएगा। दीज आर द मेथड्स हाउ यू कैन प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीज़। Yes, students, our next topic is vaccination. Vaccination is another way of preventing communicable disease. Now, what is vaccination? Vaccination is जो इंजेक्शन्स या दवाइयाँ जो हम लेते हैं to prevent the communicable disease. Vaccines are available to prevent disease like polio, cholera, डिप्थीरिया, टिटनेस एंड हेपेटाइटिस। नाउ वैक्सीन्स मीन्स दवाइयाँ और इंजेक्शन्स जो भी होते हैं, दैट इज़ नोन एज वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल। ये वैक्सीन्स बाज़ार में आ गई हैं इन डिजीज़ को रोकने के लिए। पोलियो, कॉलेरा, डिप्थीरिया, टिटनेस एंड हेपेटाइटिस। एंड दिस सी द डिजीज़ विच वी आर फेसिंग नाउ डेज कोरोना, द वैक्सीन इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। अभी वैक्सीन उसकी पूरी तरह से नहीं आई है। इट विल कम सून। इट इज़ सेड इन द न्यूज़, यू माइट बी हियरिंग द न्यूज़ दैट द वैक्सीन इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन। चल रहा है इसका अभी पूरी तरह से। इट इज़ नॉट ट्रू दैट वैक्सीन इज़ मेड और नॉट। वैक्सीनेशन हेल्प्स आवर बॉडी टू एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज़। वैक्सीनेशन क्या करती है? हेल्प्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी को हेल्प करती है टू एक्वायर इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़। कोई सी भी डिजीज़, बीमारी लग जाए उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को ताकत देती है। सो व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन
gives our body the immunity, the power. Immunity you can cause as called, you can, immunity can be called as a power. हमारी बॉडी को इतनी ताकत देती है सो दैट वी कैन fight against the disease. Vaccines of these diseases are made, but the vaccine of corona is still being made by the scientists, you can say. Thank you, students. That's all in this topic, food and health. For more videos, please subscribe my YouTube channel.